پر رونق جمعۃ المبارک کی نشست کے اندر میں نے آپ احباب کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنی ہے وہ ہے اسلام کے اندر نرمی کی اہمیت، معاملات کے اندر نرمی رکھنا، معاملات کے اندر مہربانی اور رحم کا مظاہرہ کرنا۔ نرمی جو ہے یہ بڑی قیمتی خصلت ہے۔ اگر نرمی سونے میں آئے تو یہ زیور بن جاتا ہے، اگر نرمی لوہے میں آئے تو یہ ہتھیار بن جاتا ہے، اگر نرمی مٹی میں آئے تو اسے ہریالی مل جاتی ہے، اور یہ نرمی اگر دانے میں آئے تو اسے اللہ تنا عطا فرما دیتا ہے۔ تو نرمی کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی طرح اگر بندے مومن کے دل کے اندر نرمی آ جائے، رحم دلی آ جائے، معاملات میں مہربانی آ جائے تو اس کے ایمان کو اللہ طاقت عطا فرما دیتا ہے۔ مومنوں کا، مسلمانوں کا آپس میں نرمی برتنا۔ حضرات اکرامی قدر، اللہ کریم نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو 40 سال کی عمر مبارک میں اظہار نبوت کا اعلان کرنے کا ارشاد فرمایا۔ 40 سال عمر جب ہوئی اس وقت اللہ کے پاک پیغمبر نے اظہار فرمایا کہ میں اللہ کا آخری نبی بن کے آیا ہوں، اور کل عمر مبارک 63 سال ہے۔ کتنے سال ہے؟ 60 تے 63 سال، 63 سال عمر مبارک ہے۔ 40 سال کی عمر میں اللہ کے نبی اظہار نبوت فرما رہے ہیں۔ حضور نے 40 سال کی عمر سے پہلے کبھی بھی کسی کو نہیں کہا کہ کلمہ پڑھیں، کسی کو نہیں فرمایا کہ ایک رب کی توحید کا اقرار کریں۔ گو کہ اللہ کے نبی ازل سے نبی ہیں، ابھی حال کے کائنات نے کوئی شے پیدا نہیں فرمائی تھی، ہر چیز سے پہلے اللہ نے میرے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ تو حضور اس وقت کے نبی ہیں، لیکن سرکار نے اعلان نبوت اور منصب نبوت کے حوالہ سے تبلیغ جو ہے وہ 40 سال کی عمر میں شروع فرمائی۔ تو اس لحاظ سے حضور کی تبلیغ کا عرصہ 23 سال بنتا ہے۔ کتنے سال بنتا ہے؟ 23 سال حضور کی تبلیغ کا عرصہ بنتا ہے۔ لیکن اللہ کریم نے برکت کتنی دی۔ حضور جب دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا، 1,24,000 کم و بیش بندہ ایسا تھا جس نے حضور کا کلمہ بھی پڑھا تھا، دیدار کر کے شرف صحابیت بھی حاصل کر لیا تھا۔ اور علماء کہتے ہیں 6 لاکھ بندہ اس وقت حضور کا کلمہ پڑھ کے غلامی اختیار کر چکا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کے علاوہ جو دور دراز علاقوں میں تھے، جیسے میں نے اگلے دن حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی، حضرت اویس علیہ السلام کا بھی ذکر کیا۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی حضور کے صحابی نہیں ہیں، دور دراز علاقے میں رہنے والے تھے، آئے تھے، حضور کا دیدار نہیں ملا۔ تو صحابی وہ ہوتا ہے جس نے حضور کی ظاہری حیات میں ایمان کی آنکھ کے ساتھ حضور کا دیدار کیا ہو، تو وہ صحابی بنتا ہے۔ تو 1,24,000 صحابہ تھے اور باقی 6 لاکھ بندہ جو تھا یہ عام مسلمان تھے جنہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا ہوا تھا۔ یہ اللہ نے حضور کو اتنی برکت دی، جبکہ ایک نبی کا ذکر ملتا ہے قرآن میں جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے۔
950 साल, कितने साल? 950 साल आपने तबलीग फरमाई है, 950 साल। लेकिन नतीजा क्या निकला? 80 बंदू ने कलमा पढ़ा। कितने बंदू ने कलमा पढ़ा? 80 बंदू ने कलमा पढ़ा। जबकि हजूर का कलमा पढ़ने वाले 6 लाख बंदे थे जब हजूर दुनिया से पर्दा फरमाया। इसमें वजह क्या है? वजह अल्लाह ने कुरान में बयान इरशाद फरमाई है। हाल के कायनात ने इरशाद फरमाया, फबीमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम। अल्लाह इरशाद फरमाता है, ऐ मेरे महबूब, ये तेरे रब की मेहरबानी है कि अल्लाह ने तुझे नरम दिल वाला बनाया है। क्या बनाया है? नरम दिल वाला बनाया है। ये तेरे रब की मेहरबानी है, अल्लाह ने तुझे नरम दिल वाला बनाया है, नरम दिल अता फरमाया है। आगे रब इरशाद फरमाता है, ऐ मेरा महबूब, अगर तेरा दिल सख्त होता, ये जो तेरे इर्द गिर्द हजरत अबू बकर, हजरत उमर पाक, हजरत उस्मान गनी, ये तेरे 1.25 लाख सहाबा परवानों की तरह, जैसे परवाने शमा का तवाफ करते हैं, जैसे मोमिन काबा का तवाफ करते हैं, इस तरह ये तोरे सहाबा तेरे इर्द गिर्द तेरा तवाफ करते हैं, तेरी जियारत के मरते हैं। ये वजह सिर्फ ये है कि अल्लाह ने तुझे दिल की नरमी अता फरमाई है। ये दिल की नरमी की बरकत है, जो भी तेरे सामने आता है तेरा हो जाता है। जो भी आपकी बारगाह में आता है वो आपका हो जाता है। तो ये नरमी जो है ये इस्लाम की बढ़ोतरी का सबब है। किस चीज़ का सबब है? इस्लाम की बढ़ोतरी का सबब नरमी है। अल्लाह के कुरान में नरमी का हुक्म है, नबी के फरमान में नरमी का हुक्म है, आपस में नरमी का हुक्म है। और कुरान ये भी कहता है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी वरुहमाउ बैनहुम। रब फरमाता है मोहम्मद अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, जो नबी के परवाने हैं, नबी के वफादार हैं, नबी के कलमा पढ़ने वाले गुलाम हैं। इनकी निशानी ये है कि ये नबी के गद्दारों से सख्त रवैया रखते हैं, लेकिन जो नबी के वफादार होते हैं उनसे प्यार करते हैं। अब यहाँ से पता ये चलता है कि कुरान हमें ये तालीम दे रहा है, प्यार उससे किया जाएगा जो नबी से प्यार करेगा। अल्लाह अकबर। जो नबी से गद्दारी करेगा, जो नबी से प्यार नहीं करेगा, जो नबी से धोखा करने की कोशिश करेगा, वहां फिर हजरत उमर की तलवार बेनियाम होगी, मौला अली की जुल्फकार बेनियाम होकर सारे तन से जुदा करके बताएगी हमारा ताल्लुक उससे है जो हमारे नबी का वफादार बन गया है, जो हमारे नबी का वफादार बन गया। अब है इस्लाम भी फैलाना है तो नरमी तो करनी चाहिए। इस्लाम फैलाना है, नरमी तो इस्लाम की खातिर काफिरों से भी नरमी जायज़ है, मुनाफिकों से भी नरमी जायज़ है। इस्लाम की खातिर, इस्लाम की खातिर, दीन की खातिर, दुनिया की खातिर नहीं, दीन की खातिर ऐसे लोगों से प्यार से पेश आना, ऐसे लोगों से अच्छा सलूक करना। नजरिया ये हो कि जब हम इससे अच्छा सलूक करेंगे तो ये हमारे नबी के गुलामी में आ जाएगा, हजूर का कलमा पढ़ के दीन इस्लाम कबूल कर लेगा। अगर ये दीन पे आ जाएगा अल्लाह इसका अजर हमें भी अता फरमा देगा। तो दीन फैलाने के लिए नरमी करना जायज़ है, रवा है। दीन की खातिर, दुनिया की खातिर नरमी जायज़ नहीं है। दुनिया की खातिर अगर नरमी करोगे अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह का हबीब भी नाराज़ हो जाएगा। हाँ, दीन फैलाने की खातिर किसी काफिर के साथ, किसी बद अकीदा लातीन के साथ अगर आप अच्छा सलूक करते हैं, ज़हन में ये होना चाहिए मैं इससे अच्छा सलूक करूँगा, अच्छा किरदार पेश करूँगा, ये मेरा किरदार देखेगा, मेरे नबी का वफादार बन जाएगा।
तो ये नजरिया होना चाहिए। अल्लाह अकबर, ये नरमी कितनी प्यारी चीज़ है। अल्लाह अकबर, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्बे अत्हर पे नाज़िल होने वाला कुरान है। इसमें अल्लाह ने हजरत मूसा हारून का वाक़या नकल फरमाया। मूसा हारून के मुकाबले में फिरौन आया। अल्लाह करीम ने दोनों नबियों को नसीहत फरमाई। कैसी नसीहत फरमाई? अल्लाह करीम ने फरमाया इज़हाबा इला फिरऔना इन्नहु तगा। ऐ मेरे मूसा फिरौन, ऐ मेरे मूसा फिरौन के पास जाओ, ऐ हारून फिरौन के पास जाओ। इन्नहु तगा, वो सरकश हो गया है, वो अल्लाह का नाफरमान बनता जा रहा है, वो अल्लाह की नाफरमानी में बढ़ता जा रहा है। लेकिन साथ नसीहत क्या फरमाई? क्या इरशाद फरमाया? रब इरशाद फरमाता है वकूला लहू कौलन लईना। रब फरमाता है जब उसके पास जाना ना, उससे सख्ती से पेश ना आना, उसे ऐसा ना कहना कि तू रब का नाफरमान हो गया है, तू तो बड़ा लानती है। ना ना ना, ऐ मेरे नबी मूसा हारून, उसके पास जब तुम जाना, उसे प्यार से पेश आना, उससे अच्छी बात करना, मीठे अंदाज में गुफ्तगू करना, ताकि वो भी तुम्हारी गुफ्तगू सुन के रब की तौहीद का इकरार कर ले, रब की तौहीद का इकरार कर ले। तो कौलन लय्यिना, मीठी गुफ्तगू करना, मिठास भरी गुफ्तगू करना। ऐसा ना हो आज हम गलती किसी में देख लेते हैं ना, या मुबल्लिग बन जाते हैं, कोई नमाज नहीं पढ़ता तो हम उससे जाकर कहते हैं तू तो वही लानती हो गया है। तो इस तरह, या किसी में हम कोई भी देखते हैं तो हमारे मुंह पे फ़ौरन लानत आ जाती है। क्या आ जाती है? लानत। ये बदवा है कि अल्लाह तुझे अपनी रहमत ना दे, तुझ पे लानत ही होती रहे, रब की फटकार होती रहे। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आप इरशाद फरमाते हैं, हम जब भी किसी कलमा पढ़ने वाले को गलत काम करते देखते, हम उस पे लानत नहीं भेजा करते थे, बल्कि हम दुआ किया करते थे, मौला इसे सीधी राह भी दिखा, इसके गुनाह की मुआफी भी अता फरमा। सीधी राह भी दिखा, इसके गुनाह की। और हम इंतजार करते इस बात का कि हो सकता है कि इसकी मौत ईमान पे हो जाए, हो सकता है इसकी मौत ईमान पे हो जाए। अगर ईमान पे मौत होती तो हम उसके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते, अगर कुफर पे मर जाता तो फिर भी हम उसके मुतल्लिक़ लानतें ना करते, बल्कि उसके मुतल्लिक़ खामोशी इख्तियार करते। दुआ भी उसके लिए जायज़ नहीं, दुआ उसके लिए है जो हुजूर का कलमा पढ़ के दुनिया से जाता है, इस दुनिया से हुजूर का कलमा पढ़ के जाता है। तो अब ज़रा यहाँ देखें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर क्या फरमाते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि हमारा ये नज़रिया था, हमारा ये तरीक़ाकार था, हम जब भी किसी में गलती देखते तो हम लानत, बल्कि हम उसकी हदायत की दुआ मांगते और उसकी बख्शिश की दुआ मांगते। और यही तरीक़ा है जो अहले हक का तरीक़ा है, और यही होना चाहिए कि रहमत की दुआ मांगनी चाहिए। कौन सी दुआ मांगनी चाहिए? रहमत की दुआ मांगनी चाहिए। और अब्दुल्ला बिन मसूद, ये तुमने कहाँ से तरीका लिया है? आज हम किसी में ऐब देखें फौरन लानत जुबान पे आती है, ये कहाँ से तरीका लिया? कहते हैं मैंने अपने नबी से तरीका लिया कि मेरा नबी ताइफ के बाजार में जाता है, जाके उन्हें कहता है कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू। ओ ताइफ वालों आओ, अगर दुनिया जहां की कामयाबी चाहते हो, कब्र हशर की कामयाबी चाहते हो, मैं मोहम्मद का कलमा पढ़ लो। ताइफ वालों ने मेरे नबी को पत्थर मारे, इतने पत्थर मारे, खूने रसूल आपकी जुल्फ मुबारक से चलता है, हजूर के नाले पाक में आकर जम जाता है। मेरे नबी ने ढहाल होकर बैठ जाते हैं। अल्लाह का नाज वाला नबी, अल्लाह का हबीब नबी, अल्लाह अकबर, वो नबी जिसका दिल परेशान हो तो रब कहता है सुबहानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही
लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा। महबूब तेरा दिल परेशान है, आज तेरी माँ तुझे दिलासा देने वाली नहीं है। तेरा बाप दुनिया से चला गया है, तेरा दादा चला गया है, तेरा चचा चला गया है, भाई तेरा है कोई नहीं। ऐ मेरा नबी, किसी को माँ दिलासा देती है, किसी को भाई सैर पे ले जाता है, दिलासा देता है। नबी तेरी शान ये है, किसी को महलूक दिलासा देती है। जब तेरा दिल परेशान होता है, मैं हालिक आप दिलासा भी देता हूँ, अर्श की सैर भी करवाता हूँ। मैं हालिक आप दिलासा देता हूँ, अर्श की सैर करवाता हूँ। तो इतनी नाज और नखरे वाला नबी, अल्लाह अकबर। लेकिन ताइफ के बाज़ार में दीन की खातिर मेरे नबी को जब पत्थर पड़ते हैं तो जिब्रील आ जाते हैं, पहाड़ों का फरिश्ता आ जाता है। या नबी अल्लाह, आपकी हुकूमत ज़मीन पर ही नहीं है, बल्कि आपकी हुकूमत अल्लाह के अर्श पर भी है, अल्लाह के फर्श पर भी है। या नबी अल्लाह, अगर इजाज़त अनायत फरमाए, मैं पहाड़ों का फरिश्ता हूँ, मैं इन पहाड़ों में इन लोगों को पीस के रख दूँ। अल्लाह अकबर। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब इतना सुनाना, अल्लाह के नबी ने खून आलूदा हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए, दुआ मांगने लगे। अल्लाहुम्मा हद कौमी इन्नहुम ला यालमून। ऐ अल्लाह, मेरी इस पत्थर मारने वाली कौम को हदायत भी दे दे, साथ उज़र भी पेश किया। मौला, इन पे अजाब नाज़िल ना करना। लोगों ने हजरत नूह की नाफरमानी की, मौला तूने अजाब नाज़िल किया। लोगों ने हजरत लूत की नाफरमानी की, तूने उन पे अजाब नाज़िल किया। मौला, मैं तो उन नबियों का भी इमाम हूँ, कहीं अजाब में जल्दी ना हो जाए। मैं अपनी उम्मत का उज़र पेश कर रहा हूँ। इन्नहुम ला यालमून। मौला, इस कौम का उज़र ये है, इस कौम को पता नहीं है कि इस कौम में कितनी शान वाला नबी आया हुआ है, जो गले लगाए अदू को भी ओ रसूल मेरा रसूल है, जो गले लगाए अदू को भी कहिए वो रसूल। चाके ला के सारे पढ़ो हुजूर दा, ये विरद है हुजूर दा, जिक्र पाक है, अल्लाह दे नबी दा जिक्र गज वज के करना चाहिए। मोहब्बत नाल आखो, जो गले लगाए अदू को भी वो रसूल मेरा रसूल है, कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है। हजरत उमर तलवार लेकर आ रहे हैं, नहीं पूछते हैं किधर जा रहे हो, कहते हैं मोहम्मद का सर लेने जा रहा हूं। अल्लाह अकबर। सर लेने उमर आ रहे हैं, नबी ईमान की दौलत अता फरमा रहे हैं। कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही। अल्लाह अकबर। अबू सुफियान ने सारी जिंदगी मेरे नबी के रस्ते में कांटे फैला बिछाए, मेरे नबी के रस्ते में रुकावटें पैदा की, मेरे नबी की दुश्मनी की, लेकिन फतह मक्का वाला दिन है, अबू सुफियान ने मेरे हुजूर का कलमा पढ़ा है, नबी ने राजी होकर फरमाया है, जो बंदा अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाएगा वो भी अमान पा जाएगा। वजह क्या है? कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का उसूल है।
हम सब आमना के लाल के दर के मांगते हैं, ज़ारा के बाबे के दर के सवाली हैं। अल्लाह अकबर। हमारा दिन गुजरता है नबी की अता से, हमारी रात गुजरती है नबी की सहा से। जिस जिसका ये अकीदा है आज मिल के कहे मेरा नबी इतना देता है, इतना देता है। हजरत हुसैन भी कहते हैं, ओए आतम ताई के बेटे अती, तेरे बाप के 10 दरवाजे, एक सवाली 10 दरवाजों से होकर जाता है, फिर भी मांगने की तौफीक उसे रहती है। मेरे नाने का एक ही बुआ है, मेरे नाने का एक ही दरवाजा है। अगर कोई सवाली मेरे नाने के दरवाजे पे आता है, मेरे नाने के दरवाजे पे आता है, नाना इतना देते हैं, इतना देते हैं, किसी दूसरे दरवाजे पे जाने की जरूरत ही नहीं रहती है। कोई हाली हाथ गया नहीं, ये मेरे सही का। अल्लाह ने मेरे नबी को दिल की नरमी दी, वजह यह थी कि मेरे हजूर के पास इतने गुलाम आए कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। जब अल्लाह की नुसरत और फतह आ गई, ऐ महबूब आपने देख लिया कि बंदे इस तरह आपकी बारगाह में आ रहे थे जैसे फौजें आ रही हैं, जैसे फौजें आ रही हैं। फौज दर फौज आकर हजूर की बारगाह में आकर कलमा पढ़ रहे हैं। आज की तकरीर का मौजू नरमी है। हाँ, काफर से नरमी करनी चाहिए, लेकिन नीयत और नजरिया ये होना चाहिए मेरी नरमी देख कर ये हमारे आका का गुलाम बन जाए, ये सीधे रास्ते पे आ जाए, इसका अकीदा ठीक हो जाए, इसका नजरिया ठीक हो जाए। क्यों अकीदा दुरुस्त हो नमाज फायदा देती है, अकीदा सही हो रोजा फायदा देता है, अकीदा सही हो हज फायदा देता है। अगर अकीदा सही ना हो हज फेरे बन जाते हैं, नमाज टकरे बन जाती है। मेरे नबी के गुलामों अकीदा क्या चीज है, ये मेरे हुजूर की बारगाह में माँ बाप हत्ता के अपनी जान से ज्यादा बढ़ के प्यार करने का नाम सही अकीदा है। हुजूर की निस्बत का हया, हजूर की निस्बत का हया। और इतना याद देखिए अल्लाह कुरान में फरमाए, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मुझे शहर मक्का की कसम है, रब कसम उठाता है, कसम अजमत वाली चीज़ की उठाई जाती है। अल्लाह अकबर। मैं तो भी जब कसमें उठाते हैं, हम भी अजमत वाली चीज़ की कसम उठाते हैं। वो शहर कितना अजमत वाला होगा जिसकी रब अजमत वाला कसम उठा रहा है। मौला क्यों उठा रहा है? इसमें काबा है, फरमाया काबा तो बड़ा पुराना है, इसमें हजर अस्वद है, फरमाया ये भी हजरत आदम के साथ जन्नत से आया है, ये भी बड़ा पुराना है, नबी पहले भी आए हैं, लेकिन इस शहर की कसम नहीं उठाई। मौला क्यों उठा रहा है? फरमाया व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद। कसम उठाने की वजह ये है इस शहर ने मेरे मुस्तफ़ा की तलियों के बोसे ले लिए हैं। इस शहर ने मेरे मुस्तफ़ा की तलियों के, यार जो मट्टी मेरे मुस्तफ़ा के कदमों के साथ लग जाए, रब फरमाता है उस मट्टी की कसम है जो अबू बकर और उमर मेरे नबी के साथ लग जाए, जो हुजूर का सच्चा गुलाम बन जाए। हम हुजूर की आल की और हुजूर के साहब, ये हुजूर की निस्बतें हैं। और महबूब की एक एक चीज़ प्यारी लगती है, उसकी अदा भी प्यारी लगती है, उसकी महफल भी प्यारी लगती है, उसकी मजलिस भी प्यारी लगती है, उसके दुख सुख में शरीक होने वाला हर फर्द प्यारा लगता है। और तब जाके बंदे का ईमान कामिल होता है कि बंदा नबी की ज़ात से भी प्यार करता है, नबी की बात से भी प्यार करता है, नबी की ज़ात से। तो नरमी, ये नरमी हजूर ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिस घर पे अपना रहम फरमाता है, जिस घर पे अल्लाह राज़ी होता है, उस घर वालों को नरमी जैसी नेमत अता फरमा देता है। आज घरों में उजाड़ है, घरों में लड़ाइयाँ हैं, घरों में जनाब फसाद हैं, फितने हैं जनाबे वाला। इसकी वजह सिर्फ ये है, नरमी नहीं गर्मी है। क्या है? घरों में गर्मी है, हमारे मिजाज में गर्मी है, हमारी ज़ुबान में कड़वाहट है,
یہی وجہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے دور ہیں، اپنے کنبو سے دور ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اللہ جس گھر پہ رحم فرماتا ہے، اللہ جس گھر پہ راضی ہو جاتا ہے، اس گھر والوں کے دلوں میں نرمی دیتا ہے۔ جب نرمی آتی ہے، انسان ہے، اس سے برائی بھی ہو جاتی ہے، اس سے جناب والا خلاف اخلاق بھی کام ہو جاتا ہے، لیکن جب نرمی ہوتی ہے اللہ برداشت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، اللہ برداشت جیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ یہ نرمی کتنی پیاری چیز ہے، زبان کی مٹھاس کتنی پیاری چیز ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ مثال بڑی اچھی ہے، ایک ہمارے استاد تھے انہوں نے ہمیں دی۔ وہ کہتے ہیں ایک بندہ تھا بڑا غریب سا تھا، اس کی زبان بڑی میٹھی تھی، اس نے کڑوا کوڑا شربت اس نے بنایا، روزانہ کی اس نے 10-12 بوتلیں بنانی، تو کسی گاؤں میں چلے جانا، جا کے صدا لگانی بھی، تھوڑے پھنسیوں کے لیے یہ کوڑا شربت ہے، کڑوا شربت ہے، خرید لو۔ شام کے وقت اس نے سارا شربت بیچ کر واپس آ جانا۔ ہمسایا تھا، آج حسد کی بیماری ہر طرف، ہم کسی پہ اللہ کا کرم دیکھ کر راضی نہیں رہ سکتے، خوش نہیں ہو سکتے۔ ہم تو سوچتے ہیں پتہ نہیں اس نے کیا کیا ہے، کون سا بینک لوٹا ہے، کہاں دھوکہ دیا ہے، کہاں اس نے جھوٹ بولا ہے اور یہ مال حاصل کر لیا اتنا اچھا۔ حسن ظن نہیں ہے ہمارے اندر، حسن ظن کی کمی ہے۔ تو اس نے کہا یار یہ کیسے اتنا مالدار ہو گیا؟ اس نے کہا میں تو یہ کوڑا شربت بیچنے جاتا ہوں، میرا روزانہ بک جاتا ہے، گھر آ جاتا ہوں، اللہ نے کرم کر دیے ہیں۔ اس نے سوچا اچھا جی یہ تو کوڑا ویچتا ہے تو میں پھر مٹھا ویچاں دا، میریاں بوتلاں ود وکن دیاں، میں مٹھا ویچاں دا تو میں دے مقابلے وچ جاؤں گا۔ یہ دنوں دے وچ بینک بیلنس بندہ ہو گیا، اتنا مالدار ہو گیا۔ جناب اس نے میٹھا شربت بنا لینا، جانا، اس کی ایک بھی نہ بکنی۔ جب 2-3 دن اس نے دیکھا، گھر آیا، رات کو جب اپنے گھر میں پہنچا، اس نے کہا آج میں نہ مل کے آؤں گا اپنے مسائل کو۔ جو کوڑا شربت بیچ کے آتا ہے اس کے پاس آیا، یار میرا میٹھا شربت ایک بوتل نہیں بکتی، تیری ساریاں کوڑیاں بک جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کہنے لگا یار بات یہ ہے میرا شربت کوڑا ہے، میری زبان میٹھی ہے، میرا شربت کوڑا میری زبان میٹھی، تیرا شربت میٹھا تیرا لہجہ کوڑا، وجہ یہ ہے بس اتنی۔ لوگ شربت نہیں لیتے، لوگ تو لہجے خریدتے ہیں، لوگ تو زبان خریدتے ہیں، لوگ شربت نہیں لیتے ہیں۔ اس لیے آپ اگر کسی کو دین کی تبلیغ کریں، یہ میرے لیے بھی تقریر ہے، آپ کے لیے بھی، میرے لیے پہلے ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ بندہ یا نماز پڑھنے آ گیا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، ہم اسے طریقے کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ نماز کی رغبت ہے۔ کیوں؟ یہ روزانہ کی جو عبادت ہم پہ فرض ہے، یہ نماز ہی ہے۔ کون سی ہے؟ روزے سال بعد آتے ہیں، حج امیروں پہ فرض ہوتا ہے، غریبوں پہ فرض ہے، زکوٰۃ بھی امیروں پہ فرض ہوتی ہے، غریبوں پہ فرض ہے۔ یہ ایک عبادت ہے نماز، یہ اللہ سے لنک ہے، اللہ سے باتیں کرنے کی ایک ذریعہ ہے یہ عبادت، جو اللہ نے امیر کو بھی عطا کی ہے، غریب کو بھی عطا کی ہے۔ یہ پڑھنی چاہیے، یہ پڑھنی چاہیے۔ اگر کوئی آ جائے تو اسے تھپکی لگانی چاہیے، واہ 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 تیرے آنا ساڈا دل خوش ہو گیا۔ اگر وہ تیری محبت بری زبان کی وجہ سے نماز پہ پابند ہو گیا، وہ تو پڑھے گا، اس سے ثواب ملے گا، جتنیاں وہ پڑھے گا اللہ تجھے بھی ثواب عطا فرماتا رہے گا، تجھے بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا 3 بندے جو ہیں نا، 3 بندے، یہ بھی نرمی پہ ہی ہو، حضور کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دن محشر کے نہ انہیں کوئی ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا، وَهُمْ عَلَىٰ كَثِيبٍ مِّنَ الْمِسْكِ، وہ کستوری کے پہاڑوں پہ بیٹھ کر کستوری کی خوشبوئیں بھی لے رہے ہوں گے، آپس میں باتیں بھی کر رہے ہوں گے، جب لوگ نفسی کے عالم میں ہوں گے۔ حضور وہ کون سے بندے ہیں؟ حضور نے فرمایا راجل قارئ القرآن لوجہ اللہ، جو اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے۔ کس کے لیے پڑھتا ہے؟ سارے بولیں کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے قرآن پڑھتا ہے، دکھلاوے کے لیے نہیں پڑھتا ہے، لالچ کے لیے نہیں پڑھتا ہے، اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے نہیں پڑھتا ہے۔ نمبر 2 راجل دعت ناس الی الصلاۃ،
जो लोगों को नमाज की तरफ बुलाता है लिवाजह अल्लाह, अल्लाह की रज़ा के लिए। किस लिए? अल्लाह की रज़ा के लिए। और तीसरा बंदा जो अपने मालिक के भी हक अदा करता है, अपनी ममलूक के भी हक अदा करता है। क्या करता है? अपने मालिक के हक भी अदा करता है, अपने अल्लाह का हक भी अदा करता है, और जो उसके मातहत लोग हैं उनसे भी वो नरम रवैया रखते हुए उनका भी हक अदा करता है। ये तीन बंदे हैं दिन माशर के, इन्हें ना कोई डर होगा ना खौफ होगा। ये कस्तूरी के पहाड़ों पे होंगे और हुज़ूर ने फरमाया इन्हें बगैर हिसाब के जन्नत दाखिल किया जाएगा। कहें सुबहान अल्लाह। बगैर हिसाब के जन्नत दाखिल किया जाएगा, बगैर हिसाब के जन्नत दाखिल। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह हिसाब ले तो हम में से कोई भी बंदा ऐसा नहीं जो अल्लाह की अदालत में अपना हिसाब दे सके और हिसाब देकर पास हो सके। जब भी मांगे अल्लाह से उसका फजल मांगे कि मौला हम पे अदल ना करना, हम पे फजल करना। क्यों अदल करें ते थर थर कमन, वड्डियां शाना वाले, फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले। फजल करें ते बख्शे जावन मैं वर्गे मुकाले। हज़रात ग्रामी कदर, ये नरमी हजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जन्नत में इतने खूबसूरत महल होंगे कि उनका अंदर बाहर से नज़र आएगा, उनका बाहर अंदर से नज़र आएगा। या रसूलल्लाह किसको मिलेंगे? मेरे आका ने इरशाद फरमाया ये महल उस बंदे को मिलेंगे जो मिस्कीनों को खाना खिलाने वाला होगा और नरमी इख्तियार करने वाला होगा। जो मिस्कीनों को खाना खिलाने वाला होगा और नरमी इख्तियार करने वाला होगा। मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया इन्नल्लाह रफ़ीकुन, अल्लाह नरम है, रफ़ीक है, वो नरमी वाला है। व युहिब्बुर रिफ़्क़ा, अल्लाह नरमी पसंद करता है। फिल अम्र कुल्ले, हर अमल में, हर मामले में अल्लाह नरमी पसंद फरमाता है। हर मामले में अल्लाह क्या फरमाता है? नरमी पसंद फरमाता है। अब मामला क्या है? मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस बंदे पे रहम करे जो किसी को चीज़ बेचता है तो उस पर नरमी करता है, किसी से चीज़ खरीदता है तो फिर भी नरमी करता है, बेचता है तो नरमी करता है, खरीदता है तो नरमी करता है, किसी को कर्ज देता है तो नरमी करता है, अपना हक लेता है फिर भी नरमी करता है, अपना हक लेता है फिर भी नरमी करता है, अगले को नरमी के साथ पेश आता है तो अल्लाह उस बंदे पे रहम करे। तो ये मुआमलात हैं। मुआमलात में मोमिन मोमिन के साथ अल्लाह का कुरान कहता है रुहमाओ बैनहुम, हजूर के गुलाम एक दूसरे के साथ ये शीर और शक्कर हैं, एक दूसरे के साथ नरम मजाज हैं, एक दूसरे के साथ इनका अच्छा रवैया है। और मोमिन का सबसे किरदार अच्छा होना चाहिए, चाहे अपना हो चाहे पराया हो, हर एक साथ इसका किरदार अच्छा होना चाहिए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आप अपने हुजरा मुबारक में तशरीफ़ फरमा है, एक करबलाई दुश्मन आ गया, उसके पीछे मुख्तार की फौज लगी हुई थी, उसने प्यासा था, पानी मांगा, इमाम ने उसे पानी अता फरमाया। जब उसने देखा ये तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन है जिनकी आंखों के सामने इनके अब्बा हुजूर को हमने शहीद किया, इनके भाई अली अकबर को शहीद किया, इनके भाई अली असगर को शहीद किया, इनका सारा कुंबा इनकी आंखों के सामने हमने शहीद किया, करबला से शाम तक हमने इनको अजियत में रखा, ये तो इमाम सजाद है। लेकिन इमाम ऐसे बैठे रहे जैसे जानते ही कोई नहीं है, जैसे जानते ही। जब वो पानी पीकर जाने लगा ना, वापस जाने लगा तो वो इमाम को कहने लगा ऐ इमाम, मैंने आपको पहचान लिया है, आपने मुझे नहीं पहचाना। इमाम ने फरमाया जो बाप के कातिलों, जो भाई के कातिलों, वो कैसे भूल सकते हैं, मैं तुझे पहचानता। उसने कहा इमाम, हमने करबला में तुम्हारे इर्द गिर्द आग जलाई, हमने करबला में तुम पे पानी बंद किया, आज मैं प्यासा था पहचान लिया, पानी क्यों दिया? फरमाने लगे वहां हम तुम्हारे मेहमान थे, तुम्हारा जो किरदार था तुमने किया, आज तू हमारा मेहमान है, हम तो साकिए कौसर के नवासे हैं, हमारा जो किरदार है हमने वो अदा किया है। तुम्हारे घर जाए तुम हमारा भी हमसे ले लेते हो, तुम हमारे घर आ जाओ हम अपना भी तुम्हें अता फरमा देते हैं, हम अपना भी तुम्हें अता फरमा देते हैं। तो मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम
आका करीम अलैहिस्सलाम मस्जिद नबवी से निकले हैं, सहाबा साथ हैं, मदीना शरीफ की गलियां हैं। एक यहूदी बंदा, गैर मुस्लिम बंदा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने सुरह दारीदार चादर अपने कंधे पे रखी हुई है। उसने वो पीछे से आकर चादर खींची, इतनी सख्ती से खींची कि मेरे आका की गर्दन मुबारक पे चादर की वो जो रगड़ लगी थी ना, उसका निशान आ गया, चादर की रगड़ का निशान। जब वो निशान आया, अल्लाह अकबर, बुखारी शरीफ मुस्लिम शरीफ में ये हदीस मुबारक मौजूद है। अब मामला ऐसा था कि हमारे साथ ऐसे बंदा कोई करे तो हम गुस्से में आ जाते हैं, हम गुस्से में बेकाबू होकर गालियां भी दे देते हैं, अगर हमारा बस चलता हो तो हम थप्पड़ भी लगा देते हैं। लेकिन हदीस में आता है मेरे नबी ने पीछे मुड़ के देखा, हुजूर का चेहरा मुस्कुरा रहा था, हुजूर के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। सरकार के सहाबा जलाल में आ गए, आकर जलाल में आकर कहने लगा, या नबी अल्लाह, इसने आपकी गुस्ताखी की है, अगर इजाज़त दें तो हम इसका सर तन से जुदा कर दें। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सहाबा को रोका और पूछा, बता तुझे क्या मामला है। उसने अर्ज किया, ए मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह, मैं एक सवाली हूँ, मुझे कुछ अता करें, मैं एक सवाली हूँ, मुझे कुछ ऐसे मांगत पे आसा नहीं आता। आज हमने भी किसी से मांगना हो तो हम कई अंदाज बनाते हैं, आजज़ाना अंदाज बनाते हैं, मोहब्बताना अंदाज बनाते हैं कि वो हमें कोई दे देगा। अब ये देखे बंदा मांगने हुजूर से आया है, सवाली बन के हुजूर का आया है, लेकिन मांगने का अंदाज क्या है, हुजूर की चादरें खींच रहा है, इतनी सख्ती से खींच रहा है कि अल्लाह के नबी की गर्दन मुबारक जख्मी हो जाती है। अल्लाह अकबर, मेरे हुजूर ने बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल इसे अता कर दो, इसे घर से जो कुछ है ला कर अता कर दो। जब उसने ये देखा, लग गई चोट मोहब्बत वाली, फिर इश्क नशे विच आया, ओ तन मन दी रही खबर न काई, ऐसा तीर इश्क चलाया। अर्ज करने लगा, या नबी अल्लाह, या हबीब अल्लाह, हमने पहली किताबों में पढ़ रखा है अल्लाह के नबी बड़े हिल्म वाले हैं, बड़ी बुर्दवारी वाले हैं, मैंने ये मामला जानबूझ कर किया है। या नबी अल्लाह, मैंने जो कुछ पहली किताबों में आपकी शान पढ़ी है, मैंने उससे बढ़कर ही आपको पाया है। अल्लाह के नबी, अब देर ना लगाएं, आपकी ये नरमी, आपका ये हिलाक मुझे मजबूर करता है कि ये मैं नबी अल्लाह का सच्चा हूँ। या नबी अल्लाह, अब मुझे कलमा पढ़ के अपनी गुलामी में ले ले। सरकार ने फरमाया, पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह, हक ला इलाहा, इस गल में देराज ने आरे ने, इस डुबदे बेड़े तारे ने, सानू दसिया मदीने वाले ने, पढ़ो ला हजूर, मेरे आका कैसी नरमी है, अल्लाह अकबर। वो आपने कुल के मौका पे भी सुना था, ईमान की ताजगी के लिए सुन ले, मेरे नबी की हर बात ही मोहब्बत वाली है। मैंने नहीं बयान की थी, लामा मोहम्मद अली तार साहब ने बयान की थी कि हुजूर की बारगाह में चंद मेहमान आ गए, तो मेहमानों को किसी को अबू बकर के वाले किया, किसी को हज़रत उमर के वाले किया, किसी को किसी सहाबी के वाले किया। एक मेहमान बड़ा शरारती था, उसे कोई नहीं पास रखता था। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिदा कोई नहीं होता, मैं मोहम्मद अरबी हाँ, ये आज मेरा मेहमान होगा। अल्लाह अकबर। तो उसका ज़हन बड़ा शरारती ज़हन था। सरकार कायनात अलैहिस्सलाम के घर में जितनी बकरियां थी ना, हजूर ने उनका दूध दोया, उस कमरे में रखा जिस कमरे में वो रह रहा था, उसने वो सारा दूध पी दिया। अब जब पिया, हजूर का लंगर है, किसका लंगर है? पीर सियाल की बारगाह में ना आप चावल खा रहे थे,
تو ایک پینڈو آ گیا، وہ کہنے لگا من عشق دا دے دے۔ پیر سیال نے فرمایا اشکے و اشکے، بلے وہ تیری بڑی جرت ہے، من عشق دا دے دے۔ آپ نے ایک دانہ چاول کا دیا، اس نے اپنی زبان پہ رکھا، بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑا۔ جن کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے لنگر کا یہ عالم ہے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے، یہ تو میرے مصطفیٰ کا لنگر ہے۔ سارا پی دیا، پیٹ خراب ہو گیا، دست لگ گئے، ساری رات بستر خراب کر دیا۔ جب اس نے سوچا کہ اب میں یہاں رہوں گا تو صحابہ مجھ سے ناراض ہوں گے، وہ جناب منہ اندھیرے ہی نکل گیا۔ پیچھے سرکار کائنات جب تشریف لائے، دیکھا سارا بستر گندا پڑا ہے، غلاظت لگی ہوئی ہے، پیشاب لگا ہوا ہے۔ اس کی تلوار پیچھے رہ گئی، اس کمرے میں لٹکی رہ گئی۔ سرکار نے وہ خود اپنے ہاتھوں سے پکڑا اور سرکار دھونے لگے۔ آل حانہ نے عرض کیا، ام المومنین نے عرض کیا، یا نبی اللہ دے، میں اپنے ہاتھ سے دھو دیتی ہوں۔ سرکار نے فرمایا نا، مہمان محمد عربی کا تھا، نوکری بھی محمد عربی ہو۔ مہمان کی مہمان نوازی بھی سرکار خود فرمائیں گے۔ آقا کون علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہاتھ سے نبیوں کے امام وہ بستر دھو رہے ہیں، اتنے میں وہ بھی آ گیا اپنی تلوار لینے کے لیے۔ جب آیا اس نے دیکھا، حیران رہ گیا، اللہ کے نبی وہ اپنے ہاتھ سے دھو رہے ہیں۔ دل کی دنیا وہیں بدل گئی، ساتھ ہی عرض کرنے لگا، اے محمد عربی میری تلوار ادھر رہ گئی ہے۔ سرکار نے فرمایا جا اندر کمرے میں لٹکی ہوئی ہے، اپنی تلوار لے لے، تو جا سکتا ہے۔ سرکار نے اسے گلا نہیں کیا، سرکار نے یوں بھی نہیں فرمایا تو مہمان تھا، مہمان ایسے کرتے ہیں۔ جب اس نے میرے نبی کی یہ نرمی دیکھی، سرکار کا ہلاک دیکھا، حضور کی قدموں میں گرا، عرض کرنے لگا، بال چراغ وے عشق دا میرا روشن کر دے سینہ، دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچ زمینہ۔ یہ حضور کی نرمی ہے، تو نرمی اسلام پھیلاتی ہے۔ نرمی ہونی چاہیے، لیکن نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم نرمی سے پیش آئیں گے، لوگ ہمارے آقا کے رستے پہ آ جائیں گے، لوگ سیدھے